والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. آپ نے تلاوت کلام پاک سننے کا اعزاز حاصل کیا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تاجدار کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت لے کر آئیں گے سلیم انصر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام ظاہر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام ظاہر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں دیکھتا رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب ظاہر کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلیم انصر نے پیش کی. 9th کلاس کی طرف سے 9th کلاس جو کہ میزبان بھی ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے سید محمد عبداللہ آپ آئیں اور اپنی کلاس کی نمائندگی کریں. 10th کلاس کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے سید محمد عبداللہ. Honorable Principal, respected teachers, seniors and my fellows, Assalamu alaikum.
I am Sayyid Muhammad Abdullah from class 9th. Today I will speak a few words on the occasion of farewell of class 10th. Our seniors at the school are really encouraging. They help us in every situation. They are really good in helping in our studies. 9th کلاس کی طرف سے میں اور اخلاق صاحب اور مظہر ہاشمی صاحب 9th کے انچارجز ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام بچوں کو بھی, تمام اساتذہ کرام کو بھی, پرنسپل صاحب کو بھی. ہم سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہ ہم سب کا فنکشن ہے, سب کی پارٹی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایات کے مطابق اس کو بہت سادہ اور باوقار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کامیاب ہوں گے. اخلاق سماق صاحب اور مظہر ہاشمی صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ نمائندگی ہو جائے آپ کی. پلیز تشریف لے آئیے بیٹے, ویلکم کریں. میں گزارش کروں گا ہماری ایک تصویر بھی. تصویر اس لیے بنائی ہے تاکہ سند رہے اور روز پہ ضرورت کا. میں 10th کلاس سے محمد فیصل کو بلاتا ہوں, وہ آئیں اور 10th کلاس کی نمائندگی کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد فیصل. محترم پرنسپل, اساتذہ کرام کو میرے ہم مقدم ساتھیوں, السلام علیکم. اب کے بچھڑے ہم شاید حوابوں میں ملے, اب کے بچھڑے ہم شاید حوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. سب سے پہلے میں اپنے اسکول کی مینجمنٹ اور اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے الوداعی تقریب کو منعقد کیا. اب میں اپنی جماعت دہم کے لیے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں. گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا, فضائے دوستا کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے, ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے, لگا کر حاضری چپکے نکلنا لازمی ٹھہرا. اب میں اپنے اساتذہ اکرام سے مخاطب ہوتا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت محنت سے پڑھایا اور ہمارے کردار سازی کی اور ہمیں اور اپنے تمام مضامین کو دل جمی کے ساتھ مکمل کروایا اور ہمارے ذہنوں کے اندر اتارا. اب میں جماعت نہم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے الوداعی تقریب کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اب میں آخر میں یہ شعر کہنا چاہتا ہوں. بتا رہا ہے چیرو پہ ظرف کا عالم, بتا رہا ہے چیرو پہ ظرف کا عالم, دلوں میں درد کا ایک دریا بہ رہا ہے, دلوں میں درد کا ایک دریا بہ رہا ہے. محمد فیصل اپنی کلاس کی نمائندگی کر رہے تھے. میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب سے, وائس پرنسپل, وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید ابرار حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. Respected teachers and dear students, السلام علیکم. آج اسٹیج پہ آتے ہوئے کچھ جذبات جو ہیں وہ ملے جلے ان کی کیفیت ہے. ایک تو یہ خوشی بھی ہے کہ چلو ہم نے جس اسٹوڈنٹ کے اوپر محنت کی وہ ماشاءاللہ آپ 10th کلاس کے پیپر دے رہے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہو جائے وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیں گے. باقی اتنے اچھے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سے بچھڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. جس طرح سید فیصل رضا نے بتایا ہے کہ جو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو 10th ابھی جا رہی ہے, اس نے بتایا ہے کہ اساتذہ کرام نے ہم کے اوپر محنت کی, ہماری کریکٹر سازی کی, ہمیں بہت اچھا ایک مفید شاعری بنانے کی کوشش کی. تو یقیناً تمام اساتذہ نے اور پرنسپل صاحب اور میں خود بصیت وائس پرنسپل صاحب ان ٹیچر کے ساتھ مل کر بہت کوشش کی ہے کہ ہم نہ صرف ان کو پڑھائیں بلکہ ان کی کردار سازی کریں, ان کو ایک معاشرے کا اچھا اور مفید شاعری بنائیں.
बहरहाल कमियाँ कुताहियाँ रह जाती हैं ना, हमने हाल मुमकिन कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जो है वो फ्यूचर में आगे जाकर एक मुआशरे के मुफीद शहरी बनेंगे। और एक बात आपसे करनी थी कि बच्चे जब आप एग्जाम के पेपर दे रहे हैं तो उस वक्त क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्कूल जब हायर सेकेंडरी स्कूल है तो कोशिश करें कि अपने इसी स्कूल में एडमिशन लेने की, ताकि जो हमारी क्रीम है वो बाहर ना जाए, क्रीम इधर रहेगी तो हमें इंशाअल्लाह ताला हमारा हायर सेकेंडरी हिस्सा जो है वो भी कामयाब कामरान रहेगा। तो आखिर पे मैं बच्चों को कहता हूँ कि तमाम बच्चे जो हैं, एक तो ये है कि बच्चे जिस तरह अभी भी असातिज़ा का एहतराम आपने किया है, आइंदा भी आप असातिज़ा का एहतराम करते रहें। बाकी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल साहब के जो दरवाजे हैं, आपकी मुश्किलात के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हर वक्त खुले हैं। आपका जब जी करे आप अपने स्कूल को विज़िट कर सकते हैं और अपने मसाइल के सिलसिले में हमसे और जितने रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनसे रहनुमाई आप हासिल कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन। ये थे जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, वाइस प्रिंसिपल वर्कर्स वेलफेयर स्कूल बॉयज़ गुजरात। अब मैं नहायत अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ प्रिंसिपल वर्कर्स वेलफेयर स्कूल बॉयज़ गुजरात जनाब मियाँ सफदर अली साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब सर मियाँ सफदर अली साहब। सेटअप है जिसके अंदर बच्चे अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं और बैंकिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, या उसके बाद बीकॉम करने के बाद जो जितने कॉमर्स के डिपार्टमेंट है वहाँ जाते हैं। तो आप जनरल साइंस में पढ़े, आईसीएस में पढ़े, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन हमारे पास हो गए हैं। दूसरा जो टीचर थे हमारे पास इंटर के, उनमें भी इजाफा होना शुरू हो गया है। आप पीएलएम में है, प्रमोशन हुई है अभी रिसेंटली। ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि साजा अगर आप पीएलएम में है, आप पीएलएम में ला रहा हूँ। नए एसएस जो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रमोट हुए हैं और अकमल भट्टी साहब हमारे इदारे की हैं, वो मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह के आर्डर हो जाएंगे एक दो दिन में। और भी लोग बाकी शहरों से एक्सपेक्टेड हैं। हमने लिख के भेजा हुआ है कि हमने मेडिकल शुरू करना है, हमें बायो का भी टीचर चाहिए, केमिस्ट्री को कि हमारे पास एमफिल और एमएससी टीचर मौजूद हैं, लेकिन विद डेजिग्नेशन हमें जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमने रिक्वायर किए हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद जो बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं वहाँ पे बेटा 14 और 18 सीटें हैं। और जो पुराने हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है जैसे गुजरांवाला है, लाहौर नश्तर है, वहाँ पे अभी तक 10 सीटें हैं। यानी ये सोशियोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है और कॉमर्स का सब्जेक्ट भी नहीं है। उनकी अप्रूवल के लिए इस्लामाबाद लेटर गया हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके गुजरात और सियालकोट में और इस तरह जो नए इदारे बने हैं वहाँ पे 18 सीटें हैं। यानी 18 जो लेक्चरर हैं या जिसे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं वो आपके लिए सीटें, उनका बजट मंजूर है, उसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो लोग हमारे पास बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट आते हैं या प्रमोट होके आते हैं वो आपको टीच करेंगे। वैसे जो हमारे एसएसटी हजरात हैं वो माशाल्लाह मोस्ट क्वालिफाइड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। लेकिन बेटा ये बात मैं इसलिए थोड़ी सी तमीज बना के कर रहा हूँ कि आपने अब इस दफा किसी कॉलेज में नहीं जाना। आपका कॉलेज पहले से प्रमोट भी हुआ है, आपके इल्म में है कि मैंने आने के बाद आपकी सिटी की अरेंजमेंट बेहतर की है, आपके ब्लॉक को बेहतर किया है। इंशाल्लाह इस साल हमारी कोशिश है कि हाल जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाए बनना। हमने इसकी इजाजत ले ली है, तो इंशाल्लाह आपको पता है बजट में ये मंजूरी होती है, अच्छे खासे पैसे इसके लिए चाहिए होते हैं। तो जूनियर सेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह हाल बनेगा। मीनवाइल हमने जो है ना सेक्रेटरी साहब से इजाजत ले ली है, ये जो कम्युनिटी हॉल है ये बॉयज स्कूल की मलकियत है। यानी ये देख ले इतनी सर्विस मेरी भी और आपकी भी हुई है टीचर्स की, ये हमारे इल्म में नहीं था क्योंकि बॉयज मेल अच्छे तरीके से जो है ना लोग ऑफर कर सकते हैं। जो गर्ल्स स्कूल है वो भी हमारे स्कूल है लेकिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी हॉल पहले से बहुत बेहतर है। लेबर डिपार्टमेंट ने उसको बड़ा अच्छा डिकोर करवा दिया है। अब हमें सीट्स का मसला है, हमने बोर्ड से भी रिव्यू किया है, प्राइवेट सेक्टर से, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से भी हम राब्ते में हैं कि हमें सेंटर के लिए कि वो सेंटर अपना बनाएं तो इसके बदले में हमें चेयर दे दें। तो जैसे ही 200 चेयर मतलब हाशमी साहब को भी टास्क मिला हुआ है और इसी तरह से हमने एक दो और दोस्त को टास्क दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हमें 200 चेयर मिल जाएंगी, चाहे वो हमें फॉरएवर यानी लाइफ टाइम के लिए मिल जाए। और ये भी हमने कोशिश की है कि फिलहाल हमें बेशक
2 माह के लिए जो सेंटर बोर्ड के हैं उसके लिए मिल जाए, वो बेटा ऐसे होगा कि सेंटर के बाद फिर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एग्जामिनेशन चेयर होती हैं, वो बाजू वाली चेयर होती है, वो बड़ी बेहतरीन चेयर होती है, हमने आपको दी भी हुई है कुछ। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में यानी जो नया सेशन शुरू होगा उसमें इंटरमीडिएट जो क्लासेस हैं वो अपने अंदाज से, मुनफरद अंदाज से बच्चे पढ़ेंगे। और असातिज़ा कराम माशाल्लाह हमारे नर्सरी क्लास से लेकर सेकंड ईयर तक तमाम के तमाम प्लान होते हैं। उनके पास जो है ना वो सीटिंग प्लान भी होते हैं, उनके पास जो है वो लेसन प्लान होता है, टीचर डायरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इदारे देख लें, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के जो अदारे हैं और ये जो टीचर्स हैं मोस्ट क्वालिफाइड हैं और मोस्ट प्लान है। लेसन प्लान उनके पास होता है और टीचर डायरी उनके पास होती है और सिलेबस जो है वो तमाम का तमाम पूरे साल का डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे वो ब्रेक डाउन हुआ होता है। तो मैं समझता हूँ इतनी सारी बातें आपको बताने का मकसद ये था कि बेटा आप लोगों ने एडमिशन यहाँ पे लेना है। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो समझते हैं कि पंजाब कॉलेज में फ्री एडमिशन मुझे मिल जाता है या 80% 70% वहां से मुझे फीस में रिलीफ मिलता है। तो बेटा याद रखें रिलीफ और जो डिस्काउंट है ये सारा कुछ नहीं होता। पंजाब कॉलेज एक बहुत अच्छा सेटअप है। गुजरांवाला में 2002 में ये शुरू हुआ और मैं बानियों में शामिल था। हम 4 लोग थे जिन्होंने पंजाब कॉलेज इंट्रोड्यूस कराया गुजरांवाला में, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उसमें बड़ी बेहतरी आई है। यकीन करें मैं पंजाब कॉलेज की रूह को, किप्स कॉलेज की रूह को जानता हूँ। जितने अच्छे टीचर आपके पास मौजूद हैं इनका कभी भी नेमल बदल नहीं है। क्लैपिंग करें इस पे आप बेटा। तो आप लोग पंजाब कॉलेज के अंदर, किप्स कॉलेज के अंदर जाएंगे, जाहिर है हम आपको रस्सी से बांध के तो नहीं रख सकते, लेकिन आप जरूर हमें आजमाएं। आपके अभी हम भाई पढ़ रहे हैं इंटर में, इंशाल्लाह ताला 100% वो सेटिस्फाइड है, उनके वालिदैन भी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे मैं मिर्जा रज़ाक साहब, अकबर भट्टी साहब और साकिब साहब का और वाइस प्रिंसिपल साहब का जिक्र करना और अपना जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि पिछले साल हमने मैट्रिक और इंटर में प्रैक्टिकल के हवाले से बेटा पूरी तवज्जो की है और सिद्के दिल से की है और अल्लाह की रजा के लिए की है और अपने रिज़्क़ को हलाल करने के लिए की है। और आपके इल्म में है, आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारे मैट्रिक और इंटर के कुछ बच्चे एब्सेंट थे। इंटर का हमारा एक बच्चा मरी बैठा हुआ था और उसने कहा जी मेरा प्रैक्टिकल 23 को है, वो 21 को गुजर चुका था क्योंकि शेड्यूल मेरे पास भी था, भट्टी साहब के पास भी था। तो हमने बच्चे को वहां से कैरी भी किया और जो बोर्ड का बंदा था वो हमारे गुजरांवाला से था। ये मैं अपनी बहादुरी नहीं बता रहा बेटा, कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह आपका पीछा करेंगे। तो उनके नंबर भी लगवाए हैं, उनकी डेट भी एक्सटेंड कराई है, उसकी डुप्लीकेट स्लिप मैंने खुद गुजरांवाला से अपने मुलाजिम को भेज के डुप्लीकेट स्लिप उसके आने से पहले तैयार थी। तो बेटा ये सारे काम आपके लिए भी होंगे। मैट्रिक में जो 9th में बच्चे बैठे हुए हैं वो उनको भी बता रहा हूँ, और 10th में अपने सीनियर से पूछ लें। इंशाल्लाह हमने पब्लिक स्कूल में जाके, हमने जामिया स्कूल में जाके, हमने अपने जो है ना वो सोर्स इस्तेमाल करके बच्चों के मैक्सिमम नंबर लगवाए हैं। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि बच्चे के नंबर जो है ना थ्योरी में अगर 20 या 25 है, प्रैक्टिकल में पूरे 30 लगे हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इस तरह उन्होंने चेंज ये किया बोर्ड ने, इस तरह बोर्ड ने चेंज ये किया है कि आपकी जब प्रैक्टिकल होंगे तो पहले तो वो कहते थे बच्चों को कि अपनी 9 का जो है ना मार्कशीट लेके आए, इस तरह उन्होंने प्रिंट कर दिया। यानी जो आपकी अवार्ड लिस्ट होगी बोर्ड की तरफ से आएगी प्रैक्टिकल एग्जामिनर के पास, उसके पास आपके 9th के नंबर प्रिंट होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि थोड़े नंबर वालों को थोड़े नंबर लगाएं, लेकिन एक उनको आइडिया देने के लिए ताकि कोई बच्चा झूठ ना बोले, तो वो सारी लिस्ट साफ चश्मा होगी, वो कंप्यूटराइज्ड होगी कि बच्चे के 9th में टोटल मार्क्स इतने हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है। मैं खुद प्रैक्टिकल लेता हूं, आपके टीचर भी माशाल्लाह लेते हैं। जिन बच्चों के नंबर मैक्सिमम होते हैं, यकीन करें कभी कोई सिफारिश नहीं ढूंढी, हमेशा मैंने पूरे नंबर लगाए हैं और इब्रार शाह साहब भी ऐसे ही करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस दफा अपने मजीद टीचर को प्रैक्टिकल के लिए भेजेंगे, क्योंकि इसलिए भेजेंगे क्योंकि हमारा सेशन जो है वो नर्सरी से 8 तक के पेपर होने हैं। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टीचर तकरीबन थोड़े बहुत फारिग होते हैं। तो जो प्रिंसिपल साहबान अपने टीचर्स को नहीं भेजते, ताकि स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन जरूरत हर वक्त होती है। इंशाल्लाह 1-2 बंदे को रिप्लेस करके हर दफा भेजना चाहिए, ये आपका रेफरेंस होता है। यानी आपके टीचर अगर किसी और अदारे में जाते हैं, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, अब तो उन्होंने पहले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगाते थे, अब साथ वाली तहसील में लगा देते हैं। तो वहां से जब बंदे आपके पास आएंगे तो फिर बेटा मार्क्स में बड़ी आसानी होती है। मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि थ्योरी में आप नंबर लेके दिखाएं,
प्रैक्टिकल की हमारी जिम्मेदारी है। पिछले साल भी हमने पूरी की है और इस साल भी पूरी की है और इंशाल्लाह ताला ये हमारा फर्ज भी है। और दूसरी बात, जैसे शाह साहब बता रहे थे, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और तीसरी बात यह है कि कभी कभी हम आपसे नाराज होते हैं, आपको डांटते हैं। याद रखें, घर के अंदर जो बेटा बहुत ज्यादा मुअद्दब होता है और जो बेटा बहुत जज्बाती होता है, लड़ाइयाँ करता है मोहल्ले में, तो वालिदैन को वो भी उतना ही प्यारा होता है। तो याद रखें, आपकी हमारे दिल के अंदर मोहब्बत और आपकी फ्यूचर का फिक्र हमें बहुत ज्यादा है। तो ये बात औकात अपना घर के अंदर आप देख लें कि आपका भाई जब गलत हरकत करता है तो आपके वाले साहब उसको डांटते भी हैं, मारते भी हैं। तो ये जो आपको डांट है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है और आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए। याद रखें, घर के अंदर जो सबसे निकम्मा बच्चा होता है उसकी वालदा को वो भी बड़ा प्यारा होता है। और बाद हुआ निकम्मा बच्चा जो होता है वो इतनी ज्यादा अर्निंग करता है, अपने वालिदैन का इत्तबा करता है कि वो दूसरों से आगे चला जाता है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान में सलाहियतें रखी हैं। अब वो सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे यूटिलाइज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी तमाम उस्ताद कराम एमफिल पीएचडी होते हैं, एमएससी होते हैं, टीचर का मेथड कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। ये जो मेथडोलॉजी है, इससे ही बेटा रिजल्ट में फर्क पड़ते हैं। और आपको मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो बच्चा अपने ब्रेन को, अपनी सलाहियतों को पॉजिटिव वे में यूज करता है, वो दुनिया के हर मौके पे कामयाब होता है। और जो बेटा नहीं करता वक्ती तौर पे, वो पीछे रह जाता है। और कई दफा जो टॉप 3 बच्चे होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, और जो है ना 20 वाले या 19 वाले बच्चे आगे आ जाते हैं। तो इसलिए आपने अब ये साबित करना है बेटा, 10th में 9th की कमी आपने निकालनी है। और जो 9th वाले बच्चे बैठे हैं उनकी अलग से ऐसे पार्टी तो अगले साल होगी, उनको मैं कह रहा हूँ बेटा ये आपकी पहली सीढ़ी है। 9th में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो 10th में आप इजी हो जाओगे। तो आप लोगों ने इम्तिहान को इजी नहीं लेना। और 10th वाले बच्चों को मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं कि बेटा अपनी डेट शीट को ध्यान से पढ़ लें, उसकी 2-2 कापियां करवाएं। ये ना हो कि पेपर वाले दिन आप सोए रहो और आप ये समझे कि मेरा पेपर कल है, तो पेपर जब गुजर जाता है तो बेटा बोर्ड का पेपर दोबारा नहीं होता। या तो आप कहते हैं ना जी मैं बीमार हो गया, मेरा पेपर ले रहे, तो बोर्ड में ऐसा नहीं होता, फिर अगले साल आपने देना है या आपने असेंबली में देना है। और असेंबली में 40 दिन होते हैं बेटा, उसमें तैयारी नहीं होती। तो इसलिए ये जो आपके अंदर है ना जज्बात और ये हल्ला गुल्ला की सेंस, इसको बेटा कम करें। वो जो आप जब एमएससी करने के बाद, मास्टर करने के बाद, जब आप केमिकल इंजीनियर बनेंगे, जब आप प्रोफेसर बनेंगे, तो फिर बेटा आप सीट पे बैठ के प्राउड फील करें। अभी आप पता है कि अभी आप लर्नर हैं, तो जो लर्नर होता है वो बेटा कभी भी अपनी मर्जी नहीं करता। लर्नर हमेशा अपने जो सिखाने वाला है उसकी मानता है। तो आप लोगों ने अपने वालिदैन की बात माननी है और हमारी बात माननी है। और बेटा आपके वालिदैन अगर वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, खून पसीने से आपको पालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वेल एजुकेटेड हो। वो आपके जो शफकत की नजर करते हैं वो आपके लिए काफी है। बल्कि जो अनपढ़ वालिदैन होते हैं बेटा, वो ज्यादा निगहदाश्त करते हैं अपने बच्चों की। वो क्या करते हैं, अपने सामने बिठा के पढ़ाते हैं कि मेरे सामने पढ़ो, गो के उनको वो इलिटरेट होते हैं। तो याद रखें, इसमें आपको प्राउड फील करना चाहिए। अगर आपके वालिदैन पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, ये एक नेमत है। अगर खुदा न खास्ता वो नहीं पढ़ सके तो बेटा उनकी दुआएं आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी मशअले राह है। तो इन्हीं बातों के साथ, और दूसरी बात ये है कि मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रहूंगा, और जब तक इंशाअल्लाह ताला जो है ना आप यहाँ पे कंटिन्यू अपनी सर्विस रखेंगे। और 1 मार्च से हमारे एडमिशन ओपन हो रहे हैं, अपने भाइयों को, कजन्स को दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला हम न्यू फर्नीचर भी लेके आ रहे हैं और न्यू सेटअप कर रहे हैं। उसके अंदर 1 मार्च से लेकर तकरीबन मार्च के एंड तक दाखिले खुले रहेंगे, नर्सरी क्लास से लेकर 9th तक। याद रखें 10th में और सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं होते, क्योंकि बोर्ड की जो है ना रजिस्ट्रेशन हो जाती है। नर्सरी से 9th तक एडमिशन खुलेंगे और फर्स्ट ईयर के दाखिले जो है मैट्रिक के रिजल्ट के बाद होंगे। और दूसरी बात, 9th क्लास की इस दफा परसेंटेज 40% है। जो 10th वाले बच्चे हमारे, क्योंकि पिछले साल वाले हैं, जिनका सेशन पिछला चल रहा है, उनका 33 ही है, लेकिन आप अपने अंदर टारगेट 40% का ही रखें। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस दफा 10th के लिए 33% ही है, लेकिन 9th एक नया सेटअप है, उसमें ग्रेडिंग होगी और उसमें 40 वाला पास है, यानी 100 में से 40 वाला है और 75 का 40% निकाल लें, वो पहले से ज्यादा बनता है। तो आप टारगेट अपना ज्यादा रखिए। खत्म होनी है अभी खाना खाने के बाद। हाँ, खाना खाने के बाद तो बेटा आपने बड़े जो है ना मुहज़्ज़ब तरीके से अपने घरों को जाना है। आपने 24 तारीख को तस्वीर बनाने के बाद वो आपकी फ्रेम करवा रहे हैं, हम लग जाएगी।
तो बेटा आपने कलौनी में आके बाइक वगैरह चलाई है, वो अच्छी बात नहीं है। आज कोई काम नहीं करना, आपके जज्बात उनको ठंडा कर लें, और आज आपने ये आखिरी बात मेरी जरूर माननी है। तो अगर नहीं मानोगे तो बेटा जब सेंटर में पेपर देने जाओगे ना, तो वहां जाके मैं आपके कान खींचूंगा, ठीक है? वहां तो काबू आओगे ना मेरे आप। तो इसलिए कोई हरकत नहीं करनी गैर अखलाकी, या सीधा घर जाना। बेटा देखें, कई दफा ऐसे होता है, पंजाब कॉलेज के बच्चे गुजरावाला में पिछले साल ऐसे ही अपनी फेल वाले दिन गाड़ियां बुला रहे थे, बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, एक की टांग टूट गई, बच्चा एक्सपायर हो गया। तो देखिए बेटा, ये आपकी इतनी जिंदगियां कीमती हैं, आपको पता नहीं। आपके वालिदैन से पूछे आपकी जिंदगियां कितनी कीमती हैं। हमारे टीचर से कुछ बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बने हैं, तो पूछें कि कैसे बच्चे वो वहां पहुंचे हैं। तो इसलिए आप हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए हमारी बातों को आप फील ना किया करें और बात माना करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आपने और बेटा आखिरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड, राइट एंड लर्न। दिस इज बेस्ट टाइम फॉर सेविंग योर फ्यूचर। अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल साहब ने बहुत सी बेटे ठहर जा। प्रिंसिपल साहब ने बहुत सी राज की बातें भी आपके साथ शेयर की हैं, और अपने स्कूल के बारे में जो वो बता रहे थे, कई बातें हमारे लिए भी नहीं थी। तो ये जिस तरह उन्होंने आपको प्रैक्टिकल के हवाले से जो उन्होंने एफर्ट की वो बताया, तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह करीम आपको कामयाब व कामरान फरमाए। जाते हो मेरी जान, खुदा हाफिज व नासिर, अल्लाह नगहबान, खुदा हाफिज व नासिर, हर गाम पे हमराह रहे नुसरत बारी, हर लम्हा व हर आन, खुदा हाफिज व नासिर। जाते हो मेरी जान, खुदा हाफिज व नासिर। बहुत शुक्रिया। खाना लग गया, तो आप लोग प्लीज जा तुझे माफ किया, ओ मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है
देखती